So thank you guys for logging back into my channel. My name is Rishabh Seth. This is about coronavirus news in India. India reports 18,645 new cases in one day. Over 1 crore recovered so far. 1 crore is about total population of India is about 125 crores in the last census at least. The number who have recuperated from the infection so far surged to 1 crore. The COVID 19 vaccination drive in the country will start from January 16. India has reported a total of 18,645 fresh cases in the last 24 hours, taking the total COVID tally to uh, 1 crore 4 lakh 50,000 according to the Union Ministry of Health and Family Welfare on Sunday. The recoveries have surged to 1 crore. The death toll reached 150,000, 151,000 almost, with 201 more people succumbing to the disease in a span of 24 hours. The data updated at 8 am showed the number of people who have recuperated from the infection so far surged to 1 crore, pushing the national COVID recovery rate to 96.42%, while the case fatality rate dropped to 1.44%. 96% is a very high case recovery rate, 96.42. That means, yeah, I have some personal news to share as well. My father and my mother both have contracted COVID. Um, Fingers crossed, pray for them. I know for sure they're going to do well because my dad and mom are fighters. They are not in the 1.44%. I don't even want to think about it. But yeah, the COVID 19 active caseload remained below 3 lakh for the 20th consecutive day. The active caseload 20 lakh. There are 22 lakh active coronavirus infections in the country, which comprise 2.14% of the total caseload, the data stated. COVID 19 tally in India. The total cases are 1 crore, active cases are 22 lakh, total discharge are 1 crore, the death toll is 150,000. The COVID 19 vaccination drive in the country will start from January 16th, and priority will be given to nearly 3 crore healthcare and frontline workers. The decision was taken at a meeting today in which Prime Minister Modi reviewed the status of COVID 19 in the country and the preparedness of states and union territories for vaccination against the diseases. So, this is the big news. On January 16th, India takes a landmark step forward in fighting COVID 19. Starting that day, India's nationwide vaccination drive begins, Prime Minister Modi wrote on social media platform Twitter. जनवरी 16 को नेशन वाइड ड्राइव होने वाली है वैक्सीनेशन के खिलाफ, या वैक्सीनेशन को मद्देनज़र रखते हुए। वैक्सीनेशन खुद 95% इफ़ेक्टिव है, जबकि रिकवरी रेट विदाउट द वैक्सीनेशन ही 96% है। तो मुझे मालूम नहीं कि इसका कितना फ़र्क पड़ने वाला है, बट हाँ, वैक्सीनेशन ड्राइव इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। मेरा पॉइंट ये है कि जब खुद ही रिकवरी रेट 96% है और वैक्सीनेशन भी खुद बता रहे कि 95% इफ़ेक्टिव है, तो इसका तो मतलब है कि एक्चुअली ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली 1% कम है। इससे अच्छा तो लोगों को लेट देम बी एज दे आर, उनको ऐसे ही रहने दो। वैक्सीनेशन का खर्चा और लोगों को जाने का हॉस्पिटल में, वहाँ पे और लोगों को देखने का, डॉक्टर को मिलने का, इनसे मिलने का, लाइन में खड़ा रहने का, इसके ज़्यादा चांस है कोविड होने का। तो मेरा तो राय यही है कि वैक्सीनेशन का, मुझे, हालांकि मैंने इस पर पूरी इन डेप्थ रिसर्च नहीं की है, पर ऊपर ऊपर से पता है कि जितने भी वैक्सीन है वो अधिकतर बोलते हैं कि वो 95% इफ़ेक्टिव है कोविड 19 के ख़िलाफ़। परंतु जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कोविड 19 96% लोग जिनको होता है वो तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो फिर ये इतना हलबली क्यों है वैक्सीनेशन का मेरे ज़्यादा समझ में नहीं आता है। शायद अगर आप आपके डॉक्टर से पूछे कि इसमें इतना क्या अंतर है या फ़र्क है, तो आपको पता चलेगा।
परंतु अभी ये मैं यहाँ कनाडा में बेस्ड हूँ। कनाडा में वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स में वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। जनवरी 16 को वैक्सीनेशन इंडिया में शुरू हो जाएगी। अभी जनवरी 16 को शुरू हो जाएगी इंडिया में। नरेंद्र मोदी ने ट्विटर द्वारा बताया है। इंडिया हैज़ इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया हुआ है 2 कोरोना वायरस वैक्सीन को, कोविडशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से और कोवैक्सिन भारत बायोटेक से। 2 कंपनियां हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज़ पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, और भारत बायोटेक। और सीरम इंस्टीट्यूट का तो खैर बहुत बड़ा काम है। उन्होंने एस्ट्राजेनेका का भी मैन्युफैक्चरिंग किया है। वो क्या है, एक्चुअली मैं फार्मा सेक्टर को बिलोंग करता हूँ, तो मैं शायद थोड़ा ज़्यादा आपसे बता सकता हूँ कि ये जो भी दवाइयाँ आती है तो उनमें एक रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल का मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि कोका कोला की अगर आपने कभी बॉटल या कैन खरीदा है, तो जो लिक्विड रहता है उसको शायद आप एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्चुअली उसी को भी नहीं कह सकते उसका मतलब, आप समझ रहे हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब जो जिससे आपको फ़र्क गिरने वाला है ये वैक्सीन के खिलाफ। और दूसरा एक रहता है जो फॉर्मुलेटर कहते हैं, फिनिश्ड फॉर्मुलेटर, जो क्या करता है कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट को लेके उसको या तो टैबलेट में बनाता है या सिरप में बनाता है या इंजेक्शन या वैक्सीन बनाता है या बोलस बनाता है वो। बट जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो पाउडर के फॉर्म में अधिकतर से होता है। वो उनके मैन्युफैक्चर अलग होते हैं और ये जो फॉर्मुलेशन वाले होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हाँ, जैसे अगर आप देख लीजिए, जैसे अमेरिका में जो कॉफ़ी मिलती है तो उसमें क्या करते हैं कि स्टारबक्स का अगर आपने नाम सुना हो, तो कॉफ़ी हो गया आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट कॉफ़ी हो गया, जिसका मतलब है जिससे आपको, जो लोग कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी का जो उनको शायद से अगर कुछ मज़ा आता है या हिट आता है या उनको रिफ़्रेशिंग लगता है तो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कॉफ़ी। लेकिन जो पूरा स्टारबक्स का जो वो कप मिलता है या टिम हॉर्टन्स का जो आपको कप मिलता है या वो मिलता है, तो वो हो गया फिनिश्ड फॉर्मुलेशन। अब टिम हॉर्टन्स या स्टारबक्स या कैफ़े कॉफ़ी डे वो खुद से कॉफ़ी नहीं बनाते, वो कॉफ़ी कहीं से ख़रीद के लेके आते हैं। कॉफ़ी बीन्स जो है वो कहीं से ख़रीद ले लेते, तो उनको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और इनको बोला जाता है कैफ़े कॉफ़ी डे या टिम हॉर्टन्स या स्टारबक्स को बोला जाता है फिनिश्ड फॉर्मुलेटर, ऐसे एनालॉजी ड्रॉ करने के लिए। तो स्टेरम इंस्टीट्यूट है फिनिश्ड फॉर्मुलेटर, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग वैक्सीन बनाते हैं। वो दुनिया के नंबर करीबन करीबन दुनिया के पहले पाँच मैन्युफैक्चरर में से है वैक्सीन के। एक्चुअली इंडिया हब है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के केसेस अब 9 करोड़ करीबन करीबन हो गए, जिसमें से 1 करोड़ तो खुद इंडिया में है। 9 करोड़ में से 6.5 करोड़ तो रिकवर हो गए। सो इसी से आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया में ही, इंडिया में तो 96% रिकवरी रेट है, पर पूरी दुनिया में अगर ओवरऑल देखा जाए तो करीबन करीबन 75 करीबन रिकवरी रेट अभी तक का देखा गया है। अभी तक का रिकॉर्ड किया गया है। और जो 25 है वो ऐसा नहीं है कि वो मर गए हैं, वो कुछ कुछ जो मरे हैं उनकी संख्या सिर्फ 1 करोड़ है। 1 करोड़ आउट ऑफ 90 करोड़, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट आप 2 ही मान लीजिए। तो मोर्टेलिटी रेट पूरी दुनिया में अराउंड 2.5 to 3% है, इंडिया में 1.5% है। तो इंडिया का जो कोविड कोविड के प्रति नेचुरल रिस्पॉन्स है वो वर्ल्ड से ज़्यादा मच बेटर है। परंतु ये आप, मेरा जो मेजर पॉइंट था वो आप देख सकते हैं
कि जो वैक्सीनेशन का मेजर यूज़ है, जो 95% वो इफ़ेक्टिव बताते हैं, तो 96% तो वैसे ही इंडिया के लोग रिकवर हो रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। ऑफ कोर्स आप ब्लेम कर सकते हैं कि टेस्टिंग एकदम परफेक्ट नहीं है, नंबर में कुछ इधर उधर हो सकता है, परंतु 95 और 96 एकदम इतना करीब है। अगर वैक्सीन से 95% सेफ होते और रिकवरी रेट 50% होता तो आप मानते कि चलो इसमें फिर भी कुछ गुंजाइश है। बट 95 96 आप ह्यूमन एरर मान के चलिए, 10 to 15% या जो भी 5%, अगर आपको मानना है। पहले सच से तो मैं मानता नहीं हूँ कि ज़्यादा एरर रहेगा टेस्टिंग में या तो फिर नंबर ऑफ रिकवर्ड केसेस जानने में। हो सकता है। तो वैक्सीन मेरे हिसाब से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। देखते हैं फ्यूचर में पता चलेगा कि वैक्सीन से असली में इतना फ़र्क पड़ता है या कोई और पैरामीटर आ जाएगा फ्यूचर में। पैरामीटर्स इसके हमेशा चेंज ही होते रहते हैं। तो इंडिया ने दो कोविड-19, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक है सीरम इंस्टीट्यूट का कोविडशील्ड और एक है भारत बायोटेक का, दो वैक्सीन अप्रूव किए हैं। और इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहेगा वो वन ऑफ द बिगेस्ट, या बिगेस्ट, क्योंकि चाइना में क्या होता है किसी को पता नहीं। दो ही कंट्री है जिनका पॉपुलेशन इतना बड़ा है, एक है इंडिया जिनके 125 करोड़ है और एक चाइना भी है जिसके 130 करोड़ है लास्ट सेंसस के हिसाब से, अभी जो 2011 में हुआ था। अभी का मुझे पता नहीं। तो आ, इससे तो चाइना में कितने लोग वैक्सीनेशन करने वाले हैं या उनका वैक्सीनेशन होने वाला है, ये तो शायद असली डेटा बाहर आएगा नहीं। बट इंडिया जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे डेटा फ्रीली अवेलेबल है, तो वो फ्रीली डेटा पब्लिश करेगी। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक एंडेवर्स रहेगा वैक्सीनेशन का। यूएस का 30 करोड़ पॉपुलेशन है, कनाडा का तो 3 करोड़ पॉपुलेशन है करीबन करीबन। जर्मनी, पूरा यूरोप का मिला के 220-30 करोड़ पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। मेजर मेजर पॉपुलेशन जो है वो इंडिया और चाइना में ही है। तो चाइना में अभी लॉकडाउन लगा है, वो एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जिसको आप सब्सक्राइब करिएगा। हम एक और वीडियो बनाएंगे इसका। चाइना में हीबाई प्रोविंस करके, जो प्रोविंस यानी स्टेट, जो स्टेट हमारे वहाँ राज्य बोला जाता है उसको वहाँ पे प्रोविंस बोला जाता है, कनाडा में भी प्रोविंस बोला जाता है। तो हीबाई प्रोविंस जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वुहान नाम के शहर से, वहाँ पे एक शिंगजियांग करके एक सिटी है, शिंगजियांग को लॉकडाउन में रखा गया है। और पब्लिक टेस्टिंग हो रही है, वैक्सीनेशन नहीं, टेस्टिंग, टू डिटरमाइन कि कितने लोग, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस। और मेरी एक कलीग से अभी बात हो रही थी कोविड-19 के बारे में, तो मैं उनसे बता रहा था कि ये कोविड-19 क्यों है। ये तो 2021 है और मेजरली इसका डिसीज़ 2020 में आया था, मार्च से इसका लॉकडाउन शुरू हुआ था। परंतु इसका असली शुरुआत अगर आप देखें कोविड-19 का, तो 2019 में हुआ था, सितंबर या दिसंबर के महीने में, जब एक चाइनीज़ साइंटिस्ट वुहान में इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उनको वो ऑफ कोर्स ही पास्ड अवे, या वो उनके साथ क्या हुआ, वो कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी है कि उनको स्टेट के तरफ से इंटरवेंशन था। हालांकि उसके में हम लोग ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं सकता, और कुछ जो बोलता है वो रहता नहीं है। ये हिंट नहीं थी, ये फैक्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वैक्सीन अप्रूवल का निर्णय किया है जनवरी 16 से। It would make every Indian proud that 2 vaccines that have been given emergency use approval are made in India. दोनों, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट का कोविडशील्ड। एस्ट्राजेनेका हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने पहले बताया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, टू मेक 1 बिलियन एक्सक्यूज़ मी, मतलब करीबन करीबन
हो गया 100 करोड़ डोसेस वैक्सीन के फॉर डेवलपिंग नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया. ऑन वेनेसडे ब्रिटेन बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द शॉट. ब्रिटेन तो खैर अभी दे हैव लॉस्ट देयर एंटायर वर्थ. ब्रिटेन को तो मेरे हिसाब से, और ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, थोड़ा सीरियसनेस है बट मजाक ज़्यादा है, बहुत मजाक है, कोई लीगल केस मत परसू कर देना. मेरे को तो लगता है इंडिया को ब्रिटेन पे अटैक कर देना चाहिए. अभी क्या ही रखा है ब्रिटेन में बताओ. ये इतना छोटा देश है, हमारे को ये कर गया, 200-300 साल राज कर गया, इतना वेल्थ लेके गया, इतना सब कुछ लेके गया. हालांकि ये बहुत एक इंडियन पर्सपेक्टिव है कि हमारे से पूरा पैसा वैसा लेके गया, लेकिन अभी मुझे लगता है टाइम आ गया है. हमारी इकोनॉमी ब्रिटेन से बड़ी है, हमारी आर्मी ब्रिटेन से बड़ी है. ऑफकोर्स जियो पोलिटिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं मजाक के रूप में कह रहा हूँ कि इंडिया को बस ब्रिटेन के आजू बाजू है सारे अपने शिप लगा देने चाहिए और बोलना चाहिए बेटा कर्मा इज अ बिच. अगर आपको पता नहीं है ये इंग्लिश फ्रेज, कर्मा तो सबको पता ही है, कर्मा सब मानते ही है, अधिकतर लोग इंडिया में हिंदू है. और जो कर्मा हिंदू फिलॉसफी नहीं है, वैसे एक कर्मा इज लाइक जैसी करनी वैसी भरनी. आप जैसा करते हैं वैसा आपको वापस मिलता है. तो जो इंग्लैंड ने इतने सारे सालों किया, मेरा तो आइडिया है कि चाइना के साथ भी कोलैबोरेट करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन ने चाइना पे भी ये किया था कॉलोनाइजेशन. तो इंडिया और चाइना को मिला के ख़त्म कर देना चाहिए कि भाई ये बहुत होगा, अब तुमने क्यों 200-300 साल, अब हम 200-300 साल तक तुम्हारे पर राज करेंगे. और तुम्हारा जो पूरा वेल्थ है, हालांकि ब्रिटेन में कोई वेल्थ कुछ कुछ नहीं है, गंदा वेदर है एकदम. गंदा तो नहीं कह सकते, हालांकि कुछ भी नहीं कह सकते, बट हाँ ये कह सकते हैं कि 200-300 साल राज कर देना चाहिए ब्रिटेन पे, कि बोलना चाहिए कि बेटा कर्मा इज अ बिच, बस इतना ही. और इन लोग को हिंदी लगा देनी चाहिए. बिहारी लोग को भेज देना चाहिए, बिहारी नहीं, पीपल फ्रॉम बिहार, ये सब इसमें नहीं जा रहा हूँ. और उनको बोल देना, लालू प्रसाद को बोल देना चाहिए, लालू प्रसाद जी आपका जो जेल टर्म है ना वो पूरा का पूरा माफ़ हो गया है, आपका पूरे का पूरा जेल टर्म माफ़ हो गया है. आप जाइए और इंग्लैंड को रूल कीजिए. आप जाइए, आपके बीवी को लेके जाइए, राबड़ी देवी को, और आपकी जो क्रिकेट टीम वाले बच्चे हैं 11 बच्चे, उन सब को लेके जाइए, और आप यू आर द रूलर ऑफ इंग्लैंड कल से. तो लालू प्रसाद भी खुश, उनकी बीवी भी खुश, उनके 11 बच्चे भी खुश. तेजस्वी जो यादव है उसको भी कुर्सी मिल जाएगी, सीएम की नहीं पीएम की कुर्सी मिल जाएगी. पीएम के बच्चे की कुर्सी, अगर लालू जी को रहना है तो लालू जी रहे, या तो फिर उनके बच्चे को डाल दे. लालू जी तो एक्सपर्ट ही है इसमें, 2 साल वो रहे थे, उसके बाद अपनी बीवी को बनाए थे सीएम, 3 कंसेक्यूटिव टर्म रहे बिहार में. तो लालू जी को तो ये सब आता ही है, कैसे करने का कैसे नहीं करने का. वो जाए वहाँ पे सिखाए सबको बिहारी. अधिक कितने सारे पंजाबी अपने भाई बहन हैं वहाँ पे, वो सब मदद करेंगे. पंजाबी लोग को भी अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं. पूरा पंजाब, आधा पंजाब वहाँ चला जाएगा. पंजाब तो उसमें भी दिक्कत नहीं. पंजाबी लोग क्या बहुत बहुत मजाकी, बहुत खुले खुले दिल के होते हैं. वो बोलते ही रहते हैं ओ वाहिगुरु दी फतेह, जो कि अच्छा भी है, और बहुत ही अच्छा है, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. बट हाँ, मेरे ये ऐसे जोक इंडिया को अभी चलो चाइना तो छोड़ो, चाइना फिर से झगड़ा हो जाएगा. इंडिया को सीधा, इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है. सीधा इंग्लैंड को घेर लो पूरा का पूरा, अपने लालू प्रसाद को वहाँ भेज दो, मोटा मोटा, बहुत बहुत तो ममता बनर्जी को भी भेज दो, ममता बनर्जी को भी भेज दो. और वो शिवसेना वाला है ना, क्या नाम है वो शिवसेना वाले का लड़का, हाँ आपको समझ रहे हो, वही जो अभी रिया चक्रवर्ती में फंस गया था, वही वही वही, उसी को भी भेज दो. बोलो तेरे को वहाँ पे जो भी करना है कर दे, तेरे को कोई बोलने वाला है नहीं, तू जा अपना आराम से ऐश मस्ती मस्ती मार. तेरे को रिया को करना है, जो करना है लेके जाना है, जो भी करना है वो कर दे. ये ऐसे जोक है, रिया का भी जोक है और लालू प्रसाद का भी जोक है. आप सीरियसली मत लेना. बट एज अ ये जो न्यूज़ है कि ब्रिटेन ने अप्रूव किया है, ब्रिटेन तो खुद पागला है, वो यूरोप से भी बाहर निकल गया है, अभी उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है. अकेला अकेला तो क्या, वो अकेले अकेले लोग कुछ कर ही नहीं सकते, जो किसी के साथ जुड़ नहीं सकते ना, अकेले अकेले. जैसे कि पाकिस्तान हो गया, कि अकेला पूरा देश नेशन ही बना है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए, जो कि जो हमको
ठीक है, अभी उसमें नहीं जाना, वो अलग ही पॉडकास्ट हो जाएगा, बट ठीक है चलो. Country's initial immunization plan aims to vaccine 300 million people, healthcare workers, frontline staff, including police and those considered vulnerable due to their age or other diseases, by August 2021. For effective distribution, over 20,000 health workers have been trained so far to administer the vaccine, the health ministry said. But the plan poses a major challenge. India has one of the world's largest immunization programs, but it isn't geared around adults and vaccine coverage remains patchy. Still, neither of the approved vaccine requires the ultra cold storage facilities. तो यहाँ पे जो वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कनाडा में दोनों ही जो वैक्सीन अप्रूव हुई है, एक फाइज़र की हुई है और एक मॉडर्ना की हुई है. फाइज़र की हुई है उसको है -70 डिग्री स्टोरेज कंडीशन है, मॉडर्ना की है -20 डिग्रीज. और ये इंडिया में जो वैक्सीन अप्रूव हुई है दोनों की दोनों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से, जो सीरम इंस्टीट्यूट की कोविडशील्ड है, वो जो है वो दोनों में जो स्टोरेज कंडीशन है वो -70 डिग्रीज़ की नहीं है, वो नॉर्मल -70 इंडिया में तो जैसे कि इम्पॉसिबल ही है. वो तो -70 एक जैसे कि 100 करोड़ वैक्सीन को -70 में स्टोर, उसका खर्चा वैक्सीन के खर्चे से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर रहता है, चलो ये तो विंटर है फिर भी 25-30 डिग्री रहता है. और उसको मतलब 100 डिग्री कम करना है, जैसे कि -0 तक 25 डिग्री और उसके भी नीचे 75, तो 100 डिग्री कम करना, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा. वो तो मुझे नहीं लगता, बट ये अच्छा है. दोनों रिक्वायर्स द अल्ट्रा, डू नॉट रिक्वायर मतलब नहीं चाहिए, दोनों ही, जो कोविडशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट की और जो भारत बायोटेक की है. Although Serum Institute of India doesn't have a written agreement with the Indian government, its chief executive, Adar Poonawalla, said India would be given priority and would receive most of its stockpile of around 50 million doses. Partial results from studies for the Oxford AstraZeneca shot in almost 24,000 people in Britain, Brazil and South suggest that the vaccine is safe and about 70% effective. अब देखिए, ये बता रहे 70% इफेक्टिव. ठीक है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में ये रिसर्च की हुई है. 70% इफेक्टिव तो वैसे भी लोग ट्रीट हो ही जाते हैं. बताइए, 24,000 लोगों का आपने सैम्पल साइज़ लिया है. ये तो हम पूरे सैम्पल साइज़ ले रहे हैं 700 करोड़ का. 700 करोड़ में से जैसे कि फिगर निकला था कि 8 करोड़ लोग, करीबन करीबन 8 या 9 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हुए हैं. 8 या 9 करोड़ लोग में से 1 करोड़ 8 या 9 करोड़ लोग में से करीबन करीबन जो स्टेटिस्टिक था वो आ रहा था कि 5.5 करोड़ लोग ट्रीट हो गए हैं. ऐसा कुछ स्टेटिस्टिक था, मेरे को एकदम क्लियरली आप कोट मत कीजिएगा, बट ऐसा ओवरऑल स्टेटिस्टिक है कि हाँ 6.5 आउट ऑफ 9 ऐसा कुछ था. हाँ 6.5 आउट ऑफ 9 मतलब 9 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए हैं, जिसमें से 6.5 करोड़ लोग को 6.5 करोड़ लोग को दे हैव बिकम कोविड फ्री, उनको असर नहीं गिरा है. तो 70% तो वैसे ही इफेक्टिव है. परंतु देखते हैं, द अदर वैक्सीन नोन एज कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक. जो कोवैक्सीन है, कोविडशील्ड है वो सीरम इंस्टीट्यूट का है, जो कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक का है, इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इज बेस्ड ऑन एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द कोरोना वायरस. कोरोना वायरस के बहुत सारे फॉर्म हैं. एक अभी एक नया एक वायरस है. वायरस का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो म्यूटेट होता है, वो चेंज होता रहता है और वो होस्ट के बॉडी में जाके ट्रांसमिट होता है. जैसे कि वायरस अपने आप से नहीं जीता, वायरस सिर्फ होस्ट के अंदर ही जी सकता है, और वो म्यूटेट होता है और वहाँ से कहीं और जाता है, वहाँ से कहीं और जाता है, वहाँ से कहीं और जाता है. That time frame means it is possible that the company submitted data showing that the वैक्सीन हैज़ फाउंड टू बी सेफ. सेफ का इश्यू था, सेफ्टी का इश्यू था. सेफ्टी तो खैर सेफ्टी का इश्यू मतलब वैक्सीन लेने से आदमी मर तो नहीं जा रहा है ना, वो उसका मेन टू मेन इश्यू रहता है. और इंडिया में जो फाइज़र का वैक्सीन है जिसकी मैं बात कर रहा था, -70 डिग्रीज़ लगता है उसको स्टोर करने में, वो अंडर अप्रूवल है. अभी देखो, 2 ऑलरेडी अप्रूव्ड है जिनका नाम है
ये जो कोविशील्ड है सेरम इंस्टीट्यूट का, और कोविशील्ड और जो भारत बायोटेक का फॉर्मुलेशन है वो। India will launch one of the most ambitious coronavirus vaccination drives next Saturday, aiming to reach 300 million people by July. 300 million people का करीबन करीबन मतलब हो गया 30 करोड़। 30 करोड़ लोगों को वो वैक्सीनेट करेंगे बाय जुलाई। अभी 30 करोड़ लोगों को इतने लोगों को कितने लोगों को कोरोना है फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा, और उतने में से 30 करोड़ को वो लोग वैक्सीनेट करने वाले। The vaccine is to be free for the country's population of 1.3 billion, and Modi said January 16 start would be a landmark step in fighting the pandemic. India is the world's second worst hit country behind the United States with more than 10 million cases. 1 million मतलब हो गया 10 लाख, मतलब 1 करोड़ केसेस से ऊपर। Though the death rate is one of the world's lowest. Death rate जो है वो one of the lowest है। The first phase will target about 330 million or 3 crore health and other frontline workers, including security forces, and 270 million people over 50 or at highest risk from COVID-19. The government has said it wants to have the first 300 million people inoculated by the end of July and has already staged mass trials of vaccination centers across the country. About 150,000 staff in 700 districts have been trained, and roughly 290,000 temperature controlled supply points, 240 walk-in coolers, 70 walk-in freezers, 45,000 ice-line refrigerators are ready for use. The government has approved 2 vaccines, AstraZeneca, Oxford University's Covishield, and the one produced by Indian pharmaceutical firm Bharat Biotech. The world's biggest vaccine maker by number, Serum Institute of India, says it has made about 50 million doses of AstraZeneca product and is aiming to increase the production to 100 million doses a month by March. But the Indian government is yet to finalize a purchase deal with Serum amid reports of wrangling and with Serum over the price. The number of new coronavirus cases reported each day has fallen dramatically in recent weeks, but the announcement of the vaccination drive come after the health ministry said that the number of people who have tested positive for a virulent new strain of the coronavirus found in Britain has increased to 90. ब्रिटेन में एक नए स्ट्रेन कोविड का फाइंड हुआ है, वो ज़्यादा इट ट्रांसमिट्स मोर, उसका जो रेशियो की बात करते हैं, ट्रांसमिशन रेशियो ग्रेटर देन 1, जैसे कि ट्रांसमिशन रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1, इसको समझाने के लिए it basically determines whether the virus is propagating or not. If it is less than 1, it is not propagating, and if it is more than 1, it is propagating. Authorities are still trying to trace thousands of passengers who arrived on flights from Britain before the suspension was ordered. दोस्तों ये था हमारा अपडेट, दिस इज़ द अपडेट, ये था हमारा अपडेट रिगार्डिंग कोविड-19। इसके मेन 2 to 3 पॉइंट्स है। 1 पॉइंट है कि इंडिया का जो 96% पीपल है जिनको कोरोना वायरस हुआ है वो अपने आप से रिकवर हो गए हैं। डेथ मोर्टेलिटी रेट 1.4% है, जबकि वर्ल्ड का है 2.5 to 3% मोर्टेलिटी रेशियो है। दूसरा जो पॉइंट है कि इंडिया में कोविड केसेस बहुत ही कम हो रहे हैं, दिन पर दिन कम हो रहे हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, पीएम मोदी ने अनाउंस किया, नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि जनवरी 16 से वैक्सीनेशन का रोल आउट होने वाला है। इस रोल आउट के दो मेजर करीबन 2 अप्रूव्ड वैक्सीन है। एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंस्टीट्यूट है, उसका कोविशील्ड करके है, और एक भारत बायोटेक का जो मेडिकेशन है वो दोनों। और वैक्सीनेशन टोटल फर्स्ट फेज़ में 3 करोड़ किया जाएगा वैक्सीनेशन, और टोटल 30 करोड़ वैक्सीनेशन का प्लान है बाय जुलाई। अब ये कैसे किया जाएगा, हॉस्पिटल्स के साथ किया जाएगा। इसमें से फर्स्ट जो एकदम वीक पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, हेल्थ केयर वर्कर्स, पीपल ओवर 50, इन सब को दिया जाएगा, और उसके बाद जनरल पब्लिक को दिया जाएगा। और लेकिन ये कैसे की रोल आउट किया जाएगा वो गवर्नमेंट अभी बताया नहीं है, आगे बताने की संभावना है।
धन्यवाद, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग और नमस्ते और जय हिंद।